মোদী কেবিনেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই নিজেও যিহেতু এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। হেল্ল' বন্ধুসকল, কুশলে আছে নিশ্চয়। জীৱন অনুপমেৰে পল্লৱীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব। আজি মই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মোদী চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কালি প্ৰচাৰ হৈছে আৰু মই যিহেতু নিজেও এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, সেইবাবে ভাবোঁ এই যিটো খবৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই লৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰতো হয়তো কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে বা আপোনালোকৰ সম্পৰ্কীয়, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ কোনোবা নহয় কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি মই ভাবোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে UPS অৰ্থাৎ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিমত অনুমোদন কৰিছে। আৰু আমি যিহেতু সকলোৱে গম পাওঁ যে NPSত কোনো নিশ্চিত পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই। সেয়েহে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই NPSৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকে যাতে OPSৰ যিখিনি সুবিধা আছে, পেঞ্চনৰ যিখিনি সুবিধা আছে, সেই পেঞ্চনৰ সুবিধাখিনি যাতে আমাৰ NPSৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনিক দিয়ে, তাৰ বাবে বহুত দিনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে। আৰু শেষত সেই আন্দোলন কৰি আহিছে, এই কৰ্মচাৰীসকলে এই দীৰ্ঘদিন ধৰি যিমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছে, সেই কষ্টৰ যেন সাৰ্থক হ'ব, তাৰ এটা আমি উমান পাইছোঁ। আৰু সেই কষ্টৰ শেষত কালি গম পাইছোঁ আমি সকলোৱে যে 23 লাখ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে। আৰু কিনো ভাল খবৰ, কেনেকুৱা ধৰণে কি ব্যৱস্থা হৈছে, সেই বিষয়ে আমি বলক চাওঁগৈ। আৰু কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকলৰ বাবে দৰকাৰী বুলি ভাবে, বন্ধুবৰ্গই হওক, আত্মীয় কুটুম্বই হওক, তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। বলক। কেন্দ্ৰীয় সিদ্ধান্ত মই স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে দিয়েই দিছোঁ, তথাপিও মই ইয়াত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি পইণ্ট, সেই পইণ্টখিনি কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে, 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁ 12 মাহৰ মূল দৰমহাৰ গড় 50% তেওঁ অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব। আৰু 10 বছৰ বা 10 বছৰতকৈ কম সময় চাকৰি কৰা কৰ্মচাৰীৰ বাবে সমানুপাতত সেই পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আকৌ দ্বিতীয়তে, পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পৰিয়ালে পেঞ্চনৰ 60% ধন লাভ কৰিব। তৃতীয়তে, নিশ্চিত পেঞ্চন 10,000 টকা নিম্নতম পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব। চতুৰ্থতে, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি OPS বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যিদৰে DA বা DR লাভ কৰে, সেই একে হাৰতে UPSতো লাভ কৰিব। আকৌ পঞ্চমতে, অৱসৰৰ পাছত গ্ৰেচুইটিৰ উপৰিও কৰ্মজীৱনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লাম্প চাম এমাউণ্ট এটা লাভ কৰিব। সেই এমাউণ্ট কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিব? আৰু মই প্ৰথমতেই যিটো তথ্য দিছোঁ যে 25 বছৰ বা 25 বছৰতকৈ কম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰৰ পাছত কিমান হাৰত কেনেধৰণে পেঞ্চন নিৰ্ধাৰিত হ'ব, সেই বিষয়ে মই ইয়াৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে UPSৰ বিষয়েনো কি কৈছে চাওঁগেচোন বলক। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM,
उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ।
पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। লামসাম এমাউণ্ট আৰু মই প্ৰথমতে যিটো তথ্য দিছিলোঁ যে 25 বছৰ বা 25 বছৰতকৈ কম সময় কাম কৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে কেনেধৰণে পেঞ্চন লাভ কৰিব বা কি হাৰত, কিটো নিৰ্ধাৰিত হাৰত কেনেধৰণে পেঞ্চন লাভ কৰিব সেই বিষয়ে মই পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম। কাৰণ এইটো ভিডিঅ'তে যদি গোটেইখিনি কৈ দিওঁ বহুত দীঘলীয়া হ'ব, আপোনালোকেও বহুত আমনি পাব। সেয়েহে এইটো ভিডিঅ'ত মই ইমানখিনি কোৱা নাই, ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' দিম সেই পিছৰ ভিডিঅ'ত মই সকলোখিনি সবিস্তাৰে ক'ম, আপোনালোকে চাব। আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক বহু পৰিমাণে উপকৃত হৈছে, ভাল পাইছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।